हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिक बडीज। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल डिक्लेरेशंस के बारे में। बहुत से बिगिनर्स के अंदर ये डाउट रहता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो ग्लोबल स्कोप्ड होता है एंड देन लेट और कॉन्स्ट हमारे ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। बट द रियलिटी इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट ग्लोबली scoped, and we are going to see like what are the scopes of the let var and const. Okay, and what are the uses of the let var and const quickly in this video. So I have all my things ready here, as you can see. तो let's start. तो होता क्या है कि हमारा जो वैर वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो हमारा जब से जावा सिर्फ स्टार्ट हुई है फ्रॉम द ईयर 1995, तब से हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए हम लोग लिखते हैं VAR, विच स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। तो ये है क्या, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को बताता है कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये कीवर्ड यूज़ कर लिया वैर, एंड देन वी राइट द वेरिएबल नेम जो कि हमें यूज़ करना है। ओके, सो लेट्स से first name, and let's store some name, let's say Raj here. Okay, so now what is the use of it, why we use var variable declaration? So with the help of var variable declaration there are few benefits, like we don't have to create the variable with the same name. What we can do, if you want to change the value of the same variable, we simply use the variable name and then we reassign the value. Okay, we don't have to declare it again with the var variable declaration and we have to store some different value. We can simply use its name and then we can reassign the value. Okay, so it was introduced in, or we can say it was available from 1995 till 2015. Okay, and it is obviously available now, but we actually avoid using it. Okay, now on the other hand, in 2015, or we can say ES6, we got two new variable declarations. Those are let and const. Okay, तो लेट और कॉन्स्ट का यूज क्या है और ये इंट्रोड्यूस क्यों किए गए, ठीक है, वो अब हम लोग देखते हैं। तो लेट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इन केस हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू लेटर इन द कोड रीअसाइन करनी है और चेंज करनी है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। ठीक है, सो ये हमारा कीवर्ड है विच वी यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ लेट, एंड देन वी असाइन सम नेम, लेट्स से लास्ट नेम, and then we assign, let's say, David. Okay, so, and yeah guys, this is also a last name which I have seen most of the people have, so I prefer to use it. Okay, so what we can do, we don't have to again declare the same variable with the let variable declaration, and we can simply use the variable name like so, and then we can reassign to whatever value we want. Okay, now if you check its value, okay, I think we cannot copy it here, so let's log it quickly. Okay, so now if you log its value, you will get the latest stored value of the variable. Okay, and on the other hand we have const variable declaration. So const variable declaration में क्या होता है कि आपको एक वेरिएबल इसमें बनाना होता है, ठीक है, जिसमें आपको इनिशियली कोई वैल्यू सेट करनी ही होती है। लेट्स से आपका नाम है, लेट्स से आपकी बर्थ डेट है, बर्थ ईयर लेते हैं। ठीक है, बर्थ ईयर है हमारा 1995, तो जाहिर सी बात है आपका बर्थ ईयर तो चेंज हो नहीं सकता है ना। डॉक्यूमेंट्स में आप करा लो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में आपका बर्थ ईयर तो चेंज हो नहीं सकता। जब आप पैदा हुए हो उस डेट को आप कैसे चेंज करा सकते हो, राइट। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे लेके चलते हैं कॉन्स्ट में। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो उस वेरिएबल को आप कोई वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इसको कुछ और वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करते हैं देन वी विल गेट एन एरर, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एट स्क्रिप्ट JS लाइन नंबर 17, जो कि हमारी ये लाइन है। ठीक है, तो नाउ यू गाइज विल आस्क लाइक विच
which one we should use, let or const. So it depends upon you. If you feel like you have to change the variable's value later in the code, like, or there is a probability or chances of the value to get changed, then use or go with the let. Otherwise, if you think like the value which you have stored here is not going to be changed later in the code, then obviously you should create the variable with the const variable declaration. ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आप वेरिएबल की वैल्यू कोड में चेंज कर देते हैं लेटर कोड में, और आपको ध्यान भी नहीं होता कि आपने कहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज की है। और जब एंड में आप उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं और आपको आपके एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट वैल्यू मिलती है, तो यू गेट कन्फ्यूज लाइक वाई इट इज़ गिविंग दिस वैल्यू। ओके, सो उन एरर से, उन केसेस से आपको बचाने के लिए हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन आया। ठीक है, तो क्विकली बात करते हैं स्कोपिंग की। तो लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स हमारे 2015 में आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स हैं, इनका स्कोप ब्लॉक है। और जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस ही हमारा ब्लॉक स्कोप बनाते हैं। अगर हमने सिंपल कर्ली ब्रेसेस बना दिए लाइक दिस, तो जावास्क्रिप्ट इसे स्कोप की तरह कंसीडर करता है। ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जांपल क्विकली। So we have a last name here, right? So let's move it inside of this particular block. Okay, तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। ये लास्ट नेम को ग्लोबली सर्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका स्कोप अब सिर्फ ये ब्लॉक है। ठीक है, दीज कर्ली ब्रेसेस आर द ब्लॉक वेयर वी कैन एक्सेस अ वेरिएबल, वेयर वी कैन एक्सेस दिस लेट वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो हम इस वेरिएबल को, जो कि लेट वेरिएबल डिक्लेरेशन से हम लोग ने बनाया है, उसको इस ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि ये अब इस रूम के अंदर रिस्ट्रिक्ट होके रह गया है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि एक क्लास के अंदर है, वो लेट्स से थर्ड बी में वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो उस क्लास में बैठेगा। ठीक है, और आप उसे ढूंढ रहे हो पूरे स्कूल में, तो जाहिर सी बात है आपको अगर वो ऑलरेडी क्लास के अंदर बैठा हुआ है तो आपको स्कूल में कहीं नहीं दिखेगा। जब आप उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जाओगे तभी वो स्टूडेंट आपको दिखेगा। तो अगर हम इसे लॉक करते हैं यहाँ पे, तो यू विल गेट द लॉग एज एक्सपेक्टेड। ओके, सो सेम थिंग इज विद द const variable declaration. Okay, so let's comment it for now and let's see the birth year. Let's move it inside the block quickly, and if I try to log it out here, let's uncomment it, तो हमको सेम एरर मिल रही है कि बर्थ ईयर हमारा डिफाइंड नहीं है। मतलब कि ग्लोबल स्कोप में जावास्क्रिप्ट को बर्थ ईयर वेरिएबल मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप ब्लॉक है और इट इज ऑलरेडी इनसाइड ऑफ अ ब्लॉक। ओके, तो ये इसका ब्लॉक है, यहाँ पे ही हम इसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाहर अगर आप एक्सेस करेंगे, या तो आपको ये वेरिएबल फिर से बनाना पड़ेगा इस तरीके से। लेट मी शो यू। इस तरीके से अगर आप इसको फिर से बनाओगे तब आप इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो, और या फिर आपको कंसोल लॉग ही अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे छोटे से एग्जाम्पल लेट और कॉन्स्ट के कि ये ब्लॉक स्कोप होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि वैर हमारा जो होता है ग्लोबल स्कोप होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि वैर हमारा ग्लोबल स्कोप है कि नहीं है, और देखते हैं पहले कि वैर हमारा ब्लॉक स्कोप है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से कमेंट करते हैं इसको, और इसको क्विकली रिमूव करते हैं, और यहाँ पे इसको भी कमेंट करते हैं क्योंकि एरर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने वैर को पेस्ट किया। ठीक है, वैर को हमने ये रिमूव किया। अगर यहाँ पे अब हम लॉग लगाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम इफ यू ट्राई टू एक्सेस, तो हमें क्या मिला? हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स वी आर स्टिल एबल टू एक्सेस दिस वेरिएबल which is declared with the var variable declaration. We can access it outside of this block scope, right? So that is why most of people say like it is global scoped, but this is not the case. Let me show you the actual scope of this var variable declaration. Okay, तो इसका एक्चुअल वेरिएबल, इसका एक्चुअल स्कोप है हमारा फंक्शन स्कोप। ओके,
जो वैर वेरिएबल डिक्लेरेशंस होती हैं हमारी वो फंक्शन स्कोप्ड होती हैं। तो क्विकली एक फंक्शन आते हैं, लेट्स से टेस्ट। ओके, अब इस टेस्ट को हमने यहाँ पे क्विकली कॉल करा दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगर इस वैर वेरिएबल डिक्लेरेशन को, एक्चुअली कमेंट कर देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कॉल कराते हैं, यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को बनाया, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमने इस फंक्शन को भी कॉल कराया, उसके बाद हमने आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन हमने इस वेरिएबल को लॉक किया, तो हमें एरर मिल रही है फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि अब इसका एक्चुअल स्कोप ये पर्टिकुलर फंक्शन है, सो वी कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम ये कंसोल लॉग इस फंक्शन के अंदर लगाते हैं, देन ओनली वी कैन एक्सेस द फर्स्ट नेम्स वैल्यू। ओके, ये हमारी एरर अभी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने बाहर एक लॉक लगा के छोड़ दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्लियर होता है कि जो वैर वेरिएबल डिक्लेरेशंस हैं वो हमारी फंक्शन स्कोप्ड होती हैं, ठीक है, और लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशंस जो हमारी होती हैं वो हमारी ब्लॉक स्कोप्ड होती हैं। सो अगर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं तो कर्ली ब्रेसेस जावास्क्रिप्ट विल थिंक इट इज अ ब्लॉक, ठीक है, और वो उसको एक स्कोप की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इफ यू क्रिएट सिंपल कर्ली ब्रेसेस, JavaScript will think it is a block. Don't think like it is an object, right? So object will be something like this. I know कि object literal syntax भी similar होता है, curly braces उसमें यूज होते हैं, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड में यूज होते हैं, ठीक है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये है हमारा क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट दी लेट वेर एंड कॉन्स्ट, जिसमें कि लेट और कॉन्स्ट हमारे ES15 में आया, यानी कि ES6 विच वी ऑल्सो कॉल एज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, और जो वैर वेरिएबल डिक्लेरेशन है विच वॉज ऑलरेडी अवेलेबल व्हेन द जावास्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड, ओके। And where variable declarations are the function scoped, not global scoped, guys, okay. So this is it for this lecture, and I'll see you with the next interesting topic. Till then, take care and make sure to subscribe.